Good morning, friends. Today we are going to start with a fourth part of free consent, that is fraud. In the previous lecture, we have referred to misrepresentation. Misrepresentation is representation innocently done as regards to untrue item. That means any representation made innocently, believing that it is true though it is not true. That is called as a misrepresentation. However, fraud is something like it is also a misrepresentation, but which is intentionally done. Where misrepresentation is done innocently, it is termed as misrepresentation. And when misrepresentation has been done intentionally, with the motive of deceiving some party or giving a promise and later on not performing that particular promise, initially known that he is not going to perform that particular promise, it is called as fraud. In day-to-day circumstances, we normally come with this particular topic. We generally call as ये particular person 420 है. Why this we call it as a 420? Because there is a section under Indian Penal Code, section 420, which term that this party has deceived the other party. Indirectly, 420 we call some person as ये आदमी 420 है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये पार्टी दूसरे पार्टी को डिसीव करता है. तो दिस डिसीविंग इज कॉल्ड एज अ फ्रॉड. On your screen, just refer, we are going to see in detail the definition part, and later on we'll refer to the explanation. Now, what has been given? It has been given as definition of fraud, section 17. Fraud means and includes any of the following act committed by a party to a contract with his connivance. With his connivance का meaning है with his knowledge. That means he knows what he is saying, what he is representing. That is called as a connivance. Or by his agent with the intent to deceive another party thereto, or his agent, or to induce him to enter into a contract. Now, here you have refer under the definition that with an intent to deceive. That means what is an objective of fraud is to deceive the other party. Whereas in the case of misrepresentation, in the previous lecture we have seen that there is no such intention to deceive the other party. It is innocently done. यानी अगर कोई information किसी को गलत information दी, innocently दी, not with the intent of deceiving the other party, धोखा देने का अगर आपका कोई objective नहीं है, तो then it is called as a misrepresentation. However, यहाँ पे आपका अगर objective किसी को धोखा देना है, तो then it is called as a fraud. What it says? Now, how the fraud has been divided one by one, we are going to refer. The suggestion as a fact of that which is not true by one who does not believe it to be true. That means you are giving suggestion to the other party, और जो आप सजेशन दे रहे हो आपको पता है कि वो सजेशन अनट्रू है, इनकरेक्ट है, लेकिन आपका इंटेंशन क्या है कि आप सामने वाले पार्टी को गलत सजेशन क्यों दे रहे हो, ताकि आपको उसके साथ धोखा करना है. यू वांट टू डिसीव, आप चाहते हो कि उसका नुकसान हो. तो दिस इज कॉल्ड एज अ फ्रॉड. सेकेंड वन इज एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीव ऑफ द फैक्ट. एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट यानी कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड कर रहे हो, उसका इंपॉर्टेंट फैक्ट आप सामने वाले पार्टी से कंसील कर रहे हो, यानी छुपा रहे हो, जिसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड हो रहा है. आप जानबूझ के वो पर्टिकुलर पार्टी को उसका इंपॉर्टेंट फैक्ट जो गलत है उसके बारे में नहीं बता रहे हो, आप उससे कंसील कर रहे हो. जैसे कि यस्टरडे आई टोल्ड यू दैट कि आई एम अ डीलर इन फर्नीचर. मैं आपको 1000 में से आई हैव गिवन यू अ लॉट ऑफ 200. आउट ऑफ दैट 100 चेयर्स का लॉट जो है वो खराब है. तो यहाँ पे उसको पता नहीं है सप्लायर को, और वो आपको वो चीज दे रहा है. तो दिस इज कॉल्ड एज अ मिसरिप्रेजेंटेशन.
हावेवर अगर उसको उस 200 चेयर्स में से ये पता है कि 100 चेयर्स का लॉट खराब आया हुआ है और फिर भी वो पर्टिकुलर लॉट सामने वाले को दे रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ एक्टिव कंसीलमेंट। वो उसको उस फैक्ट ऑब्जेक्ट के फैक्ट के बारे में बता नहीं रहा है, उससे कंसील कर रहा है, तो दिस विल बी कॉल्ड एज अ फ्रॉड। व्हाट इज द थर्ड वन? A simple meaning, a promise made without any intention of performing it, that is 420। आप प्रॉमिस दे रहे हो और आपको जब प्रॉमिस आपने दिया है, आपको जब भी पता है कि आप वो परफॉर्म करने वाले नहीं हो। जैसे कि अगर मैंने किसी से पैसा उधार लिया और मैं उसको बोल रहा हूं कि मैं विद इन अ वीक आपको ये लौटा दूंगा और मुझे पता है कि मैं वो लौटा नहीं सकता हूं या लौटाने वाला नहीं हूं, तो दिस इज कॉल्ड एज अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। एनी अदर एक्ट टू डिसीव, इसके अलावा कोई भी एक्टिविटी आप करते हो सामने वाले को धोखा देने के लिए, तो दैट विल कम अंडर सेक्शन 17, दैट इज फ्रॉड। Any such act or omission as the law specifically declares to be fraudulent. Apart from this, any other act under law it has been termed as fraud, तो it will be regarded as fraud। कि अगर कोई भी इंडियन पिनल कोड के सेक्शन में डिफाइन किया गया है कि ये एक्ट अगर आप करते हो तो उसे फ्रॉड माना जाएगा, तो दैट एक्टिविटी इफ यू कैरी ऑन इट विल बी रिगार्डेड एज फ्रॉड अंडर सेक्शन 17। तो these are the details. Now further we'll go with section 17 explanation part, what it has been given. Mere silence as to fact likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud. This is very very important, you have to remember that ke mere silence as to the fact likely to affect the willingness of the person to enter into contract is not a fraud. अगर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जिसका आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हो, उसके कुछ चीजों के बारे में यू रिमेन साइलेंट, जहां पे आपका कोई ड्यूटी बनता नहीं था उसको बताने के लिए, तो वहां पे वो फ्रॉड नहीं माना जाएगा। एक चीज कहते हैं कि व्हेन यू गो फॉर परचेजिंग सर्टेन गुड्स, इट इज अ ड्यूटी ऑफ द बायर to verify that particular product properly and then only you should purchase it. If that product turn out to be with certain minor defect, then you cannot hold shopkeeper as liable for that. जैसे कि अगर मैं कोई फर्नीचर शॉप पे गया और मैं फर्नीचर ले रहा हूं, तो मुझे उस फर्नीचर पे एक मामूली सा स्क्रैच दिख रहा है, फिर भी मैं वो स्क्रैच को इग्नोर कर रहा हूं और फिर भी वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट में परचेस कर रहा हूं, तो घर लाने के बाद आई कैन नॉट हेल्ड शॉपकीपर एज ए रिस्पॉन्सिबल। अगर कोई रेफ्रिजरेटर आप परचेस कर रहे हो और एक रेफ्रिजरेटर एक साइड से मामूली सा दबा हुआ है, जो आपको भी दिख रहा है और शॉपकीपर को भी दिख रहा है, शॉपकीपर आपको कभी नहीं बताएगा, वो नहीं बोलेगा कि साहब ये प्रोडक्ट में ये जो डिफेक्ट है ये देख लो, सरका के आपको बताएगा नहीं, ये पहले डिफेक्ट देखो। अगर कोई भी शॉपकीपर ऐसी माइनर चीज डिफेक्ट बताते रहा तो उसका प्रोडक्ट बिकने से रहा, नो वन इज गोइंग टू परचेस। तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द शॉपकीपर कि वो माइनर डिफेक्ट के बारे में आपको बताए या कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में बताए। तो वहां पे किसका ड्यूटी बनता है? इट इज अ ड्यूटी ऑफ अ परचेजर टू वेरीफाई दैट प्रोडक्ट प्रॉपरली एंड देन परचेस। तो नाउ व्हाट इट सेज ओवर हियर, अ मियर साइलेंस एज टू द फैक्ट। यहाँ पे साइलेंस किसके बारे में साइलेंस की बात की गई है? जो कॉन्ट्रैक्ट में आपको एंटर्ड करने के लिए बोल रहा है। जैसे कि अगर मैं परचेजर और सेलर की बात करता हूं, तो सेलर अगर कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में साइलेंट है तो क्या बोल रहा है? मियर साइलेंस एज टू द फैक्ट likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud। जैसे कि अभी मैंने रेफ्रिजरेटर का एग्जांपल दिया कि वो एक साइड से दबा हुआ है, तो अगर शॉपकीपर उसके बारे में आपको नहीं बताता है, उसको अगर ऐसा लगता है कि अगर ये माइनर से डिफेक्ट के बारे में अगर मैं आपको बताऊंगा तो यू मे चेंज योर इंटेंशन टू परचेज दैट पर्टिकुलर गुड्स, यू मे नॉट परचेज दैट गुड्स, तो वो उसके बारे में ही रिमेन साइलेंट। बहुत बार होता है कि शॉपकीपर डजंट आपको बताता नहीं है, तो हियर इट डज नॉट अमाउंट्स टू फ्रॉड, क्योंकि यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है कि इट इज अ ड्यूटी ऑफ द बायर टू वेरीफाई, he has to use his ordinary diligence to purchase the goods and properly verify and then he should purchase। अगर कुछ डिफेक्ट माइनस से निकलता है तो he cannot hold that seller responsible for that। तो what it says,
mere silence as to the fact likely to affect the willingness of the person to enter into a contract is not fraud unless the circumstances of the case are such that regards been had to them. It is a duty of the person keeping silence to speak or unless his silence is in itself equivalent to speech. यानी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड करने के लिए बोल रहा है तो उसका कोई ड्यूटी नहीं बनेगा कि वो आपको डिटेल बताए, और इफ ही रिमेन साइलेंट अबाउट सर्टेन फैक्ट तो देन इट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज फ्रॉड अनलेस एंड अंटिल इट इज अ ड्यूटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन टू स्पीक. यानी वहां पे उसको साइलेंट नहीं रहना है, उसको उस चीज के बारे में बताना पड़ेगा. नहीं तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में जहां अगर उसका ड्यूटी नहीं बनता है तो जो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड हो रहा है उसका ड्यूटी बनेगा कि वो बराबर तरीके से सब वेरीफाई करे, वो फिर परचेस करे. लेकिन अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा बोला गया है कि इट इज अ ड्यूटी ऑफ द पर्सन हु इज आस्किंग यू टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, अगर वहां पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि वहां पे उसका ड्यूटी बनता है कि वो बोले तो उसको बताना पड़ेगा. अगर वो नहीं बनता है, वो नहीं बताता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जहां पे बनता है उसका ड्यूटी उसको बताना मैंडेटरी है तो बताना पड़ेगा. अगर वो नहीं बताता है तो देन इट विल अमाउंट्स टू फ्रॉड. उसके अलावा बोला है कि जहां पे इस साइलेंस इन इटसेल्फ इक्विवेलेंट टू स्पीच, कभी कभी क्या होता है इफ यू रिमेन साइलेंट और सामने वाला आपके साइलेंस को ही स्पीच समझ लेता है तो देन वहां पे अगर सपोज कोई पर्टिकुलर पार्टी ने आपको कोई क्वेश्चन किया, यू रिमेन साइलेंट, और सामने वाले पार्टी ने उसका आंसर अपने हिसाब से निकाल लिया क्योंकि आपने आंसर नहीं दिया, तो वहां पे भी अगर उसका अजम्पशन गलत निकल जाता है तो देन यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि वहां पे आपका ड्यूटी था, उसने क्वेश्चन आपको किया तो आपको बोलना चाहिए था लेकिन आपने नहीं बोला और उसने उसका अजम्पशन उसके हिसाब से निकाल लिया और वो गलत निकला तो आप रिस्पॉन्सिबल रहेंगे फॉर अंडर सेक्शन 17 फ्रॉड. What it says, we will just refer this explanation with the help of example what they have given. What it says, A sells by auction to B a horse which in A knows to be of unsound. A says nothing to B about the unsoundness of the horse. This is not fraud by A. This is an important judgment given by the court. कि अगर मैं एनिमल में डील कर रहा हूं तो वहां पे सामने वाला पार्टी अगर मेरे से वो एनिमल परचेस कर रहा है तो वो उसका ड्यूटी है कि वो एनिमल की बराबर डॉक्टर की जांच करवाए, वेटरनरी डॉक्टर जो भी रहेगा उससे उसकी जांच करवाए और फिर परचेस करे. अगर वो बिना जांच करवाए वो एनिमल मुझसे परचेस करता है तो देन सेलर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल. इस केस में जहां पे बायर एंड सेलर का कोई कनेक्शन दिए नहीं है, दे आर नॉट रिलेटिव्स, दे आर सेपरेट पार्टीज, दे आर नॉट रिलेटिव्स टू ईच अदर. वहां पे आई एम अ सेलर, यू आर अ बायर, यू कम टू मी फॉर द पर्पज ऑफ परचेजिंग एन एनिमल. एक डॉग मैं आपको सेल कर रहा हूं, एक हॉर्स मैं आपको सेल कर रहा हूं, तो आप मेरे से अगर वो हॉर्स या डॉग परचेस करते हो तो वहां आपका ड्यूटी है कि वो कोई वेटरनरी डॉक्टर के पास ले जाके उसका चेकअप करवाए. अगर वो बाद में कोई रीजन के कारण कोई डिजीज से सफर हो रहा है या फिर वो अनसाउंड माइंड, वो पर्टिकुलर हॉर्स जो है वो पागल है, तो उस सर्कमस्टेंसेस में यू कैन नॉट हेल्ड सेलर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, यू हैव टू रिमेंबर. लेकिन कहां पे सेलर रिस्पॉन्सिबल रहेगा, यहाँ पे क्या बोला है, मियर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड. इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे सेलर ने बायर को वो बताया नहीं, सेलर रिमेन साइलेंट फॉर दैट, तो हियर इट इज नॉट फ्रॉड. लेकिन कहां पे फ्रॉड माना जाएगा, कहां पे वो सेलर का ड्यूटी था कि उसने बोलना चाहिए था. नेक्स्ट एग्जांपल, B is A's daughter and has come of age. That means he has become major. Here the relation between the parties would make it A's duty to tell B if horse is unsound. That means अगर buyer and seller are in fiduciary relationship. Fiduciary relationship यानी relationship of trust. कि अगर एक पार्टी दूसरे पार्टी पे ट्रस्ट रख के कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा है
तो वहां पे साइलेंस विल अमाउंट्स टू फ्रॉड। वहां पे आप चुप नहीं रह सकते हो। अगर वो पर्टिकुलर चीज का कोई डिफेक्ट है, मटेरियल फैक्ट का डिफेक्ट है, तो उस डिफेक्ट के बारे में आपको सामने वाले पार्टी को बताना पड़ेगा। जैसे कि इस केस में अगर ए और बी रिलेटिव्स है तो उनके बीच में रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट है, तो यहां पे एक सेलर का ड्यूटी बनेगा कि अगर हॉर्स इज ऑफ अनसाउंड माइंड, वो उसको बताए कि ये अनसाउंड माइंड है, ये पर्टिकुलर एनिमल ये डिजीज से सफर कर रहा है, एंड देन ही शुड सेल। अगर वो इस पोजीशन पे ही रिमेन साइलेंस, देन इट विल अमाउंट्स टू फ्रॉड। थर्ड एग्जांपल, B says to A, B is a buyer, A is a seller. If you do not deny it, I shall presume that the horse is sound. बायर सेलर से पूछ रहा है कि मैं ये समझ रहा हूं कि ये पर्टिकुलर हॉर्स इज नॉट ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी ये हॉर्स साउंड माइंड है। तो यहां पे बायर ने सेलर से एक क्वेश्चन किया, तो यहां पे सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा कि वो उसका आंसर करेक्टली दे। अगर वो इनकरेक्टली देता है या आंसर नहीं देता है तो इट विल अमाउंट्स टू फ्रॉड। तो यहां पे व्हाट वी हैव सीन, अनलेस इज साइलेंस इन इटसेल्फ इक्विवेलेंट टू स्पीच, ये पर्टिकुलर एग्जांपल को इक्वली एप्लीकेबल होगा कि अगर ए एंड बी आर नॉट रिलेटिव्स, ए एंड बी अगर रिलेटिव्स है तो वहां पे सेलर का ड्यूटी बनेगा कि वो बोले। अगर रिलेटिव्स नहीं है, लेकिन अगर बायर सेलर से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो वहां पे सेलर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा कि उसको करेक्टली आंसर दे। अगर वो आंसर नहीं देता है और सामने वाला उसका अजम्पशन अपने हिसाब से निकाल लेता है और वो अजम्पशन बाद में गलत निकलता है, तो देन सेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो हियर A says nothing. Here A's silence is equivalent to speech. Here A silence will amount to speech. What it further says, A and B being traders enter into a contract. A has a private information of change in price which would affect B's willingness to proceed with the contract. A is not bound to inform. This is a general contract. यहाँ पे there is no relationship existing. अगर एक पार्टी को वो प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट में बेच रहा हूं आपको और मुझे पता है कि उसकी प्राइसेस मार्केट के अंदर कम है और मैं ज्यादा प्राइस में बेच रहा हूं, तो डेफिनेटली सेलर इज नॉट गोइंग टू से दैट कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैं 100 रुपीज में आपको बेच रहा हूं लेकिन यही प्रोडक्ट मार्केट में 75 में मिल रहा है। कोई ऐसा बोलेगा? नो वन इज गोइंग टू डू दैट। तो हियर इट विल नॉट अमाउंट्स टू फ्रॉड। यहाँ पे ड्यूटी किसका बनता था? यहाँ पे बायर का ड्यूटी है कि वो पूरा मार्केट फिरे एंड देन ही शुड कम टू मी। इफ ही इज कमिंग टू मी, आई एम अज्यूमिंग दैट वो फिर के वो सब जगह देख के आया होगा। आई एम नॉट बाउंड टू स्पीक एज रिगार्ड्स टू द मार्केट प्राइस। मुझे मार्केट प्राइस आपको बताने की कोई जरूरत नहीं। अगर मैं बताता हूं तो मैं बोलूंगा कि मार्केट में 125 रुपए में मिल रहा है, मैं आपको 100 रुपए में दे रहा हूं। लेकिन अगर रिवर्स वे मार्केट में 100 में मिल रहा है और मैं 125 में बेच रहा हूं, तो यहाँ पे मेरा कोई ड्यूटी नहीं है कि मैं आपको बताऊं। इफ आई एम सेइंग दिस, आई एम अ फूल, नो वन इज गोइंग टू परचेज द गुड्स फ्रॉम मी। तो हियर इट विल नॉट अमाउंट्स टू फ्रॉड। व्हाट इट सेज फर्दर, the following are the essential elements of fraud. There must be a representation or assertion. कल भी अपन ने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, मिस रिप्रेजेंटेशन में भी देखा था। There has to be a representation and assertion. And what is the objective? And it must be false. However, silence may amount to fraud or an active concealment may amount to fraud. In some of the cases, just now we have seen that silence in itself is not fraud unless it is a duty of the person to speak. If it is not a duty, then it will not amount to fraud. However, there comes a duty for a person who asks the other party to enter into a contract that he should speak. That is, in the case of fiduciary relationship, it is a duty of the person to say. अगर उसको कोई चीज के बारे में पता है, कोई फैक्ट के बारे में पता है, तो उसको बताना जरूरी है। वहां पे साइलेंस विल अमाउंट्स टू फ्रॉड। द रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी रिलेटेड टू अ फैक्ट। ऑब्वियसली द रिप्रेजेंटेशन शुड बी रिलेटेड टू अ फैक्ट। कौन से फैक्ट? अ मटेरियल फैक्ट। अगर वो मटेरियल फैक्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है और इट इज अ सबऑर्डिनेट फैक्ट,
और उसके बारे में अगर मैं नहीं बताता हूं तो चलेगा, लेकिन मटेरियल फैक्ट है तो उसके बारे में मुझे बताना पड़ेगा। The representation should be made before the conclusion of the contract with the intention to induce the other party to act upon it. The representation should be made before the conclusion. That means before entering into the contract. Contract entered करने के पहले मैं अगर false representation देता हूं तो then it will amount to fraud, और वो false representation मैं purposely intentionally दे रहा हूं। एंड ऑब्जेक्टिव उसके पीछे क्या है कि मेरे फॉल्स रिप्रेजेंटेशन देने से आप उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड कर रहे हो। तो कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड करने से पहले मैंने आपको फॉल्स मिसरिप्रेजेंटेशन या फॉल्स रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। द रिप्रेजेंटेशन और स्टेटमेंट शुड बी मेड विद अ नॉलेज ऑफ इट फॉल्सिटी और विदाउट बिलीव इन इट्स ट्रूथ or recklessly not caring whether it is true or false. What will amounts to fraud? कि अगर मैं कोई स्टेटमेंट देता हूं तो मुझे पता है कि वो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, यानी मैं इंटेंशनली आपको गलत स्टेटमेंट दे रहा हूं, तो देन इट विल अमाउंट टू। या फिर मैं स्टेटमेंट ऐसी दे रहा हूं बिना चेक करे। अगर मैं कोई मटेरियल फैक्ट के बारे में आपको बता रहा हूं तो मुझे ये सोचना है कि वो मटेरियल फैक्ट को मैंने स्टैटिस्टिकली बराबर वेरीफाई किया है कि नहीं, साइंटिफिकली मैंने वेरीफाई किया है कि नहीं। अगर मैं बिना सोचे समझे रेकलेसली, दैट मीन्स आई मीन विदाउट हैविंग एनी प्रूफ मैं कुछ भी बोल रहा हूं, तो देन इट मे अमाउंट्स टू फ्रॉड। The other party must have been induced to act upon the representation. What is very important is कि आप मेरे false representation पे एक्ट करते हो और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड करते हो। इफ यू डोंट एक्ट टू माई फॉल्स रिप्रेजेंटेशन देन इट मे नॉट अमाउंट्स टू फ्रॉड। यहां पे मैं अगर आपको इंड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं किसी थर्ड पार्टी को इंड्यूस नहीं कर रहा हूं, मैं आपको इंड्यूस कर रहा हूं और आपको बोल रहा हूं ये कॉन्ट्रैक्ट, ये प्रोडक्ट के बारे में ये डिटेल है, हालांकि मुझे पता है कि वो फॉल्स है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाना है, ना कि थर्ड पार्टी को। और थर्ड पार्टी ने पता नहीं कहां से पता लगाया कि मैं ऐसा बोलता हूं और मैंने ये प्रोडक्ट के बारे में फैक्ट्स बोले, या फिर वो एक दुकान में मैं आपको बता रहा हूं, कोई थर्ड पार्टी वो प्रोडक्ट के बारे में सुन रहा है और वो थर्ड पार्टी ने बोला कि मुझे वो प्रोडक्ट परचेस करना है, तो यहां पे वो फ्रॉड नहीं माना जाएगा, क्योंकि मैं किसको रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं, आपको, ना कि थर्ड पार्टी को। अगर मेरे फॉल्स रिप्रेजेंटेशन से आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड होते हो तो देन इट विल अमाउंट्स टू फ्रॉड। द अदर पार्टी मस्ट हैव रिलाइड अपॉन द रिप्रेजेंटेशन एंड मस्ट हैव बीन डिसीव्ड। मेरे फॉल्स रिप्रेजेंटेशन पे आपने भरोसा कर लिया, जबकि मुझे पता था कि मैं रिप्रेजेंटेशन या फिर जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वो गलत है। आप मेरी इंफॉर्मेशन पे भरोसा करके आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड कर ले रहे हो, तो देन इट विल अमाउंट्स टू फ्रॉड। द अदर पार्टी एक्टिंग ऑन द रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव कॉन्सिक्वेंटली सफर्ड अ लॉस। कि अगर मैंने गलत इंफॉर्मेशन दी और बाद में वो इंफॉर्मेशन निकल गई सही और आपका कोई भी लॉस हुआ नहीं है, तो देन इट विल नॉट अमाउंट्स टू फ्रॉड। अगर मैंने इंफॉर्मेशन गलत दी जबकि मुझे पता था कि वो गलत है और आपका हो गया लॉस, तो then you can demand something from me, then it will amounts to fraud. What it says, what are the effects? Effects of fraud upon a validity of the contract. When the consent to an agreement is caused by the fraud, the contract is voidable at the option of the party defrauded and has the following remedies. He can resign the contract within a reasonable time. He can sue for damages. He can insist on the performance of the contract on the condition that he shall be put in the position in which he would have been at the representation made being true. इसमें से फर्स्ट एंड थर्ड मिस रिप्रेजेंटेशन में भी देखा अपन ने। यहां पे एक और चीज है कि यहां पे वो डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है जो मिस रिप्रेजेंटेशन में नहीं था। इन मिस रिप्रेजेंटेशन द एग्रीव पार्टी कैन नॉट क्लेम द डैमेजेस। व्हाट एग्रीव पार्टी कैन डू इन मिस रिप्रेजेंटेशन?
ही कैन रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, यानी वो कैंसिल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, या फिर दूसरा कि वो बोल सकता है कि आपने जो बोला था वो करके दो, मुझे कोई कॉम्पेंसेशन नहीं चाहिए। जैसे वी हैव सीन इन द प्रीवियस लेक्चर कि एक इंडियन मेड टीवी मैंने आपको जापानीज मॉडल बोल के बता दिया और बेच दिया, आपको पता चल गया कि वो इंडियन मेड है, जबकि वो जापानीज मेड नहीं है, वो इंडियन मेड है। तो व्हाट ही कैन कम टू मी एंड से दैट के आपने ये मुझे इंडियन मेड दे दिया, एंड दैट वाज इनोसेंटली डन, इट वाज नॉट पर्पसली डन, कि आपने मुझे इंडियन मेड दे दिया और जापानीज मेड बोल के, तो आई विल टेक दैट इंडियन मेड मॉडल इन माय पोजीशन एंड आई एम गोइंग टू गिव यू द अदर जापानीज मॉडल, आपको मैं वो चेंज करके दूंगा, एक्सचेंज करके दूंगा। लेकिन फ्रॉड में क्या बोला गया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, उसके अलावा वो बोल सकता है कि मुझे डैमेजेस भी चाहिए, या फिर अभी ये इंडियन मेड और जापानीज मॉडल टीवी मॉडल का अपन ने एग्जांपल देखा कि वहां पे अगर मैं जानबूझ के करता था कि मैंने बताया आपको जापानीज मॉडल लेकिन दिया इंडियन मेड, तो यहां पे पर्पसली अगर करा है तो उस सर्कमस्टेंसेस के अंदर आप मेरे पास आके कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि ये टीवी आप वापस लो, आपने झूठ बोल के मुझे ये टीवी दिया है और मेरा जितना नुकसान हुआ है वो कॉम्पेंसेशन भी आपको देना पड़ेगा, तो मुझे देना पड़ेगा। या फिर आप बोल सकते हो कि आपने इंडियन मेड टीवी दे दिया, बताया जापानीज मेड बोल के, तो आप ये इंडियन मेड वापस लो, जापानीज मेड दो, और उसके अलावा आने जाने का जो खर्चा हुआ है वो भी मुझे देना पड़ेगा, तो आई हैव टू गिव इट टू यू। तो यू कैन डिमांड a compensation in the case of fraud, which you cannot do that in misrepresentation. Fine. What it says further, mere silence is not fraud, जो we have already seen that कि अगर वहां पे सेलर का कोई ड्यूटी बनता नहीं है, या पर्सन जो आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा रहा है उसका ड्यूटी बनता नहीं है और वो चुप रहता है, तो वहां पे फ्रॉड माना नहीं जाएगा। लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस में वहां पे उसका ड्यूटी मैंडेटरी है, उसका ड्यूटी बनता है कि वो बोले, तो उसको बोलना पड़ेगा, और अगर वो नहीं बोलता है तो इट विल अमाउंट टू फ्रॉड। व्हाट इट सेज, a party to the contract is under no obligation to disclose the whole truth to the other party, caveat emptor. You have to remember this word. Caveat emptor is also going to come under the Sale of Goods Act. What does it mean? Caveat emptor. Let the purchaser beware is the rule applicable to the contract. Let the purchaser, let the buyer beware. What it means that it is a duty of the buyer to properly verify the product and then he should purchase. अगर उसमें कोई माइनर सा डिफेक्ट निकल जाता है, जैसे कि अपन देखते हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट आप जब परचेस करते हो तो दुकानदार पहले ही बोल देता है कि आपको इसका कोई वारंटी नहीं, यानी यहाँ के अगर मेरे दुकान की सीढ़ियां अगर आप उतरे और उसके बाद अगर ये प्रोडक्ट में कोई भी प्रॉब्लम आया तो उसका जिम्मेदार सेलर नहीं रहेगा। द सेम थिंग इज एप्लीकेबल। तो वहां पे आपको वो चीज बराबर चेक करके लेना है, तो वहां पे सेलर का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो बोले। He should not, it is not a duty of the seller to speak, तो there it will not amount to fraud। जैसे कि मैं गोलानी मार्केट में जाता हूँ और कोई मोबाइल, चाइनीज मोबाइल परचेस करता हूँ और घर पे आने के बाद देखता हूँ कि उसका चार्जर चल नहीं रहा है, तो वहां पे अगर मैं जाता हूँ और बोलता हूँ कि चार्जर आप मुझे चेंज करके दो, तो ही कैन रिफ्यूज, ही कैन से दैट कि आपने पहले ही इस चीज को बराबर चेक करके ले जाना चाहिए था। तो यहाँ पे कैविएट एम्प्टर का रूल एप्लीकेबल होगा, दैट इज लेट द बायर बिवेयर, इट इज अ ड्यूटी ऑफ द बायर टू प्रॉपरली वेरीफाई। वहां पे सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगा। देयर इज नो ड्यूटी टू स्पीक इन सच केसेस एंड साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। Similarly, there is no duty to disclose the fact which are within the knowledge of both the parties। यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई चीज, जैसा मैंने रेफ्रिजरेटर के एग्जांपल दिया कि एक साइड से थोड़ा सा वो दबा हुआ है, तो वहां पे दोनों को दिख रहा है, फिर भी बायर वो चीज ले रहा है, उसको पता है कि ये चीज पे थोड़ा सा मामूली सा डिफेक्ट है, ले रहा है, तो वहां पे घर जाने के बाद में ही कैन नॉट हेल्ड सेलर रिस्पॉन्सिबल कि आपने मुझे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिफेक्टिव दिया है। तो पहले आपको भी दिख रहा था, दोनों को दिख रहा था, फिर आपने लिया क्यों? तो देन यू कैन नॉट हेल्ड सेलर रिस्पॉन्सिबल। व्हाट इट सेज,
H sold to W some pigs which were to his knowledge suffering from fever. The pigs were sold with all faults and H did not disclose the fact of fever to W. Hell, there was no fraud. This is an important case law. Remember, Ward versus Hobbs. इस एग्जाम्पल में दिया है कि अगर कोई भी जानवर अगर आप परचेज करते हो और बाद में वो डिफेक्टिव निकलता है तो उसमें सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। आपको जांच पड़ताल करके किसी डॉक्टर को बता के वो एनिमल लेना है। अगर उसमें कोई भी तरीके का, अभी थोड़ी देर पहले हॉर्स का एग्जाम्पल देखा अपन ने, अनसाउंड माइंड, वहां पे भी देख लिया कि सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं था। यहाँ पे अपन पिग का एग्जाम्पल देख रहे हो जो फीवर से सफर कर रहा है, जो बीमार है, तो वहां पे भी सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जहां पे फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, जहां पे रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ट्रस्ट है, वहां पे सेलर को इस चीज के बारे में बायर को बताना पड़ेगा। अगर वो नहीं बताता है तो देन इट विल अमाउंट्स टू फ्रॉड। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड। कौन कौन से केसेस में इट विल अमाउंट्स टू फ्रॉड, यानी जहां पे बायर का ड्यूटी, सेलर का ड्यूटी है कि वो बायर को बताए और अगर वो नहीं बताता है तो फ्रॉड माना जाएगा। वन बाय वन वी आर गोइंग टू रिफर दैट। ड्यूटी ऑफ द पर्सन टू स्पीक, फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट कम विद इन दिस कैटेगरी। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, जैसा मैंने आपको बताया कि ड्यूटी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट कहां पे रहता है कि अगर आप बोलते हो ये मेरी पहचान की दुकान है, तो यहाँ पे यू कैन से दैट कि इस आदमी पे मैं भरोसा रखता हूं, तो दैट मीन्स वहां पे सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि वहां बताए। रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशनशिप में, या फिर आप आपके चाचा की दुकान से, मामा की दुकान से कोई चीज ले रहे हो, तो वहां पे क्या आ जाता है, रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट। व्हाट इट सेज हियर, द पर्सन इन whom confidence is repose is under a duty to act with utmost good faith and make full disclosure of all material fact. Example, a broker was asked to buy shares for client. He sold his own shares without disclosing the fact. The client was entitled to avoid the contract or affirm it with a right to claim secret profit made by a broker on the transaction, since the relationship between the broker and the client was a relationship of utmost good faith. हुआ क्या एग्जाम्पल के अंदर, ये केस लॉ रेगियर वर्सेस कैम्पबेल स्टॉट। इस एग्जाम्पल में वी हैव सीन दैट कि एक ब्रोकर है और उसका एक क्लाइंट है। क्लाइंट ने ब्रोकर को कोई शेयर्स परचेस करने का बोला, तो ब्रोकर ने यहाँ क्या किया, खुद के ही शेयर्स क्लाइंट को बेच दिए विदाउट डिस्क्लोजिंग कि वो उसके शेयर्स सेल कर रहा है। यहाँ पे ब्रोकर का ये ड्यूटी बनता था कि वो क्लाइंट को बताए कि जो आप शेयर्स परचेस करना चाहते हो मेरे पास भी है, मार्केट से लूं या मेरे ही शेयर्स आपको सेल कर दूं, तो जो भी मार्केट रेट है वही रेट में मैं भी बेचूंगा, तो यहाँ पे वो फ्रॉड नहीं माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे ब्रोकर ने बिना क्लाइंट को बताए उसी के शेयर्स क्लाइंट को सेल कर दिया और उस पर प्रॉफिट कमाया, तो देन वो प्रॉफिट क्लाइंट को रिटर्न देना पड़ेगा, क्योंकि दैट विल कम अंडर सेक्शन 17, दैट इज अ फ्रॉड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में इंश्योरर इंश्योरेंस कंपनी से कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है तो वो भी रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट है। तो यहाँ पे जो भी इंश्योरेंस एजेंट रहेगा, जो भी कंपनी का एजेंट रहेगा, उसका वो ड्यूटी बनता है कि वो इंश्योरर को पूरे फैक्ट्स डिस्क्लोज करे, वो पूरे फैक्ट्स बराबर तरीके से बताए। अगर वो कोई भी फैक्ट छुपाता है और बाद में कोई प्रॉब्लम निकलता है तो उस केस के में इंश्योरेंस कंपनी विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो इट इज अ ड्यूटी ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी टू डिस्क्लोज ऑल द फैक्ट टू द इंश्योरर। वहां पे साइलेंस विल अमाउंट्स टू फ्रॉड। देन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज। ऑब्वियसली द मैरिज इज अ एक्टिविटी ऑफ ट्रस्ट, एक दूसरे पे भरोसा रख के। यहाँ पे मैं अपन ने देखा कि हॉर्स जो है वो अनसाउंड माइंड है और सेलर वो हॉर्स को बायर को बेच रहा है, तो सेलर नॉट रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे एक बंदा और बंदी, यहाँ पे एक लड़का और लड़की अगर कोई मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है और लड़के वालों के घर वालों ने अगर लड़की वालों को बताया नहीं कि लड़का पागल है, तो देन इट विल अमाउंट्स टू फ्रॉड। यहाँ पे ड्यूटी बनेगा कि वो लड़का अगर मैड है, लड़का अगर इंसेन है, तो उसके बारे में वो लड़की वालों को बताए।
वहां पे नहीं बताते और वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड कर लेता है तो दैट विल अमाउंट्स टू फ्रॉड। तो वहां पे दो इट इज अ डोमेस्टिक एग्रीमेंट बट इट विल ऑल्सो कम अंडर सेक्शन 17 दैट इज अ फ्रॉड। अपन बोलते हैं ना 420 यहाँ पे फंसाया गया है, तो वहां पे वो फंसाने का क्लेम आपके ऊपर लग सकता है। तो लड़का अगर मैड है या फिर उसको झटके उठते हैं, कभी भी वो ऐसा इंसेनली बिहेव करता है, तो ये बारे में लड़की वालों को बताना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली सेटलमेंट, अगर फैमिली सेटलमेंट के कोई केसेस होते हैं तो वहां पे भी इट इज अ ड्यूटी कि सभी फैक्ट्स एक दूसरे को बताए जाए। और अगर कोई फैक्ट्स नहीं बताते, जैसे कि अगर कोई प्रॉपर्टी के ऊपर किसी ने मॉर्गेज रखा है, मॉर्गेज उठा के पैसा, मॉर्गेज रख के कोई पैसा उठाया, गिरवी रख के कोई पैसा उठाया, और अगर वो फैमिली सेटलमेंट में वो प्रॉपर्टी किसी भाई को मिल रही है तो उसके बारे में उसको बताए कि ये गिरवी रखी है, ये फ्री नहीं है, यहाँ पे प्लेज रखा गया है और ये प्लेज रख के इस प्रॉपर्टी पे इतना पैसा उठाया है और ये प्रॉपर्टी आपको दी जा रही है, लेकिन इस पे जो भी पैसा उठाया है वो मैंने उठाया है, वो मैं रीपे करूंगा। अगर वो नहीं बताते हो आप तो देन इट विल अमाउंट्स टू फ्रॉड। शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट, person issuing prospectus at the time of public issue of shares, person issuing prospectus, that is a company, at the time of public issue of shares debentures have to disclose all the material fact within the knowledge. That means directors जब prospectus issue करते हैं with the objective of issuing the shares, तो उन्हें सभी मटेरियल फैक्ट्स उस प्रोस्पेक्टस में डिक्लेयर करना पड़ेंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो देन it will amounts to fraud. वहां पे silence will amounts to fraud. What it says further, where the silence itself is equivalent to speech, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले पूछा कि एक बोला कि अगर एक कोई पार्टी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और आप उसका आंसर नहीं दे रहे हो और सामने वाला उसका अजम्पशन अपने हिसाब से निकाल ले रहा है और बाद में वो गलत निकलता है, तो आप जिम्मेदार रहेंगे क्योंकि उसने आपको क्वेश्चन पूछा था, आपका ड्यूटी था कि उसको आंसर करें। फॉर एग्जाम्पल, ए सेज टू बी, इफ यू डू नॉट डिनाई इट आई शैल अज्यूम दैट हॉर्स इज साउंड। A says nothing, here silence amounts to speech. In case of fraudulent silence, contract is not voidable if the party whose consent was so obtained had the means of discovering the truth with ordinary diligence. यानी अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन को दिख रहा है, वो ऑन द फेस वेरीफाई कर पा रहा है कि ये गलत है और मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझ रहा है कि वो गलत है, और फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है, तो हियर इट विल नॉट अमाउंट्स टू फ्रॉड। क्योंकि विथ ऑर्डिनरी डिलीजेंस आपको पता लगा सकते थे कि ये जो मैं बोल रहा हूँ वो गलत इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपने वो जानबूझ के यू हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द ऑब्जेक्टिव कि आप मेरे ऊपर बाद में फ्रॉड का क्लेम दाखिल कर सके, क्योंकि फ्रॉड के क्लेम में आपको कॉम्पेंसेशन भी मिलेगा जो कि मिस रिप्रेजेंटेशन में नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर मैं आपको कोई चेयर सेल कर रहा हूं और वो चेयर मुझे पता है कि वो पर्टिकुलर चेयर का एक पर्टिकुलर पाव टूटा हुआ है, आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, मैं आपको कम प्राइस में वो बेच रहा हूं और आपने फिर भी वो मेरे से कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड किया, तो ऑर्डिनरी डिलीजेंस से आप बैठ के देख सकते थे, आपने नहीं बैठा या फिर आपने जानबूझ के वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड किया है ताकि आप बाद में मुझे फ्रॉड क्लेम डाल सके हो, तो वो फ्रॉड का क्लेम एंटरटेन नहीं होगा। क्योंकि बोला गया है कि अगर बायर विथ ऑर्डिनरी डिलीजेंस सच्चाई का पता लगा सकता है लेकिन वो ऑर्डिनरी डिलीजेंस को यूज नहीं कर रहा है, तो उस केस में फ्रॉड का क्लेम आप दाखिल नहीं कर सकते हो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ फ्रॉड and a difference between a misrepresentation and a fraud. In the case of misrepresentation, you can avoid the contract, or you can ask the party to affirm the contract and put you in the same position. जो भी फैक्ट मैंने बोले थे अगर वो करेक्ट होते थे और करेक्ट होने के वजह से आप जो पोजीशन में रहते थे उस पोजीशन में आप मुझे लाने के लिए बोल सकते हो। लेकिन फ्रॉड में एक एडिशनल चीज आप मांग सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉम्पेंसेशन। तो इन केस ऑफ ए फ्रॉड यू कैन क्लेम द कॉम्पेंसेशन अपार्ट फ्रॉम आइदर कैंसलिंग द कॉन्ट्रैक्ट और enforcing the contract, but in the misrepresentation you cannot ask for compensation. Hope you have understood. Still if you have any doubt, please ping me, I will answer that. Bye everyone.